Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. Here we are again and we will study nationalism in India. In previous chapter we studied about Lala Lajpat Rai who died because of the Lathi charge. Now we will study about Bipin Chandra Pal. Time period was 1858 to 1932. Bipin Chandra Pal was one among the trio of Lal, Bal and Pal. Initially he came in contact with Brahmo Samaj. In chapter 1 we studied about Arya Samaj and Brahmo Samaj. So during that time he also came in contact with Brahmo Samaj and he started a weekly. Weekly means a magazine which publish every week. The name was Weekly. The name of Weekly was New India and a newspaper. He published a weekly also and also newspaper named Vande Mataram. The British government accused him of provoking the youngsters in violent activities. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने उनको मीन्स बिपिन चंद्रपाल को ये जो न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम की वजह से यंगस्टर्स को फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन होने के लिए इंस्पायर करते थे. बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने उनको अक्यूज़ किया कि वो यंगस्टर्स को वायलेंट एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवोक करते हैं, इंस्पायर करते हैं. ही वॉज इन फेवर ऑफ अक्वायरिंग स्वराज थ्रू रेवोल्यूशन. वो भी बिलीव करते थे कि रेवोल्यूशन के बिना स्वराज पॉसिबल नहीं है. वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट नहीं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग 1906. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी विल रिमाइंड दैट British government divided Bengal into two parts, East Bengal and West Bengal. The main purpose, the main reason to divide Bengal was to divide India into two divisions and to rule. That was their policy, divide and rule. They wanted to break unity of Hindu and Muslim, and here we can see that in 1906 means after the partition, Muslim League was established. Let us study about that. The Britishers had adopted the policy of divide and rule. As I told you earlier, nationalism was growing at a quick pace in India and the Britishers found it necessary to break the national unity. Britishers ने divide and rule policy adopt की थी, but here instead of dividing, they were uniting. Indians were uniting and they were joining their hands and they ready to fought with British government. And that's why Britishers जो है उनको realize हुआ कि now it is a time, it is necessary to break unity. अगर हमने नेशनल यूनिटी ब्रेक नहीं की, नेशनल यूनिटी को डिवाइड नहीं किया, then it will be difficult for us to survive in India. They could successfully convince a group of Muslim leaders into forming the Muslim League. And that's why they consult with the Muslim leader that why you are joining your hands with the Hindu people. He convinced British government, so the officer of the British government, they convinced the leader of Muslim community that we will form Muslim League, so one separate community for you. And this Muslim League was formed in Dhaka in 1906 CE. Suppose in one mark question will be there, where was the Muslim League formed? So it was formed in Dhaka. The religious head of Muslims, मुस्लिम रिलीजन के जो रिलीजियस हेड थे, आगा खान, देन ढाका के नवाब सलीमुल्ला खान, वाइसरॉय मिंटो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉर्ड वाइसरॉय मिंटो, एंड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी
Dunlop Smith. Remember the name? Religious head of Muslim Aga Khan, Nawab of Dhaka Salimullah Khan, वाइसरॉय मिंटो एंड मिंटो के प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे डनलॉप स्मिथ, दे ऑल प्लेड अ वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. अब ये कैसे फॉर्म हुआ और क्या किया, दैट वी विल स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड. डिटेल में हम लोग 9th में इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज होम रूल मूवमेंट 1916. Here you can see the picture that is Annie Besant. She is Annie Besant. Okay. So, between 1916 and 1918, 1916 and 1918 means these 2 years or 3 years के बीच में World War I was closing. जब World War I जो है वो एंड होने वाला था. Prominent Indian leaders Joseph Baptista, Muhammad Ali Jinnah, Bal Gangadhar Tilak. See, here you can see Joseph Baptista, he was a Christian. Muhammad Ali Jinnah, he was a Muslim. And Bal Gangadhar Tilak, he was Hindu. Unity we can see. G.S. Khaprade, Sir S. Subramaniam Iyer, and the leader of the Theosophical Society, Annie Besant. ये सब they all decided to organize a national alliance of leagues across India, specifically to demand home rule or self-government within the British Empire for all in India. ये सब जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, G.S. खापर्डे, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर एंड थियोसॉफिकल लीडर एनी बेसेंट जो थे, इन सब ने डिसाइड किया कि वो नेशनल अलायंस ऑफ लीग जो है उसको पूरे इंडिया में फॉर्म करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. और वो होम रूल दैट मीन्स के सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंस, हम खुद अपनी कंट्री पर हमारा रूल होना चाहिए. नाउ अब कोई हमारे घर पर आकर डिसाइड करेगा कि हमारे घर में आज खाने में क्या बनेगा, दैट वी विल डिसाइड. नो, बाजू वाले आंटी थोड़ी बोलेंगे कि आज क्या खाना है और क्या बनाना है. सो द सेम वे कंट्री हमारा, सो रूल भी हमारा होना चाहिए. सो दे डिमांड होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट. ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वॉज कॉन्फर्ड विद द टाइटल लोकमान्य. और इसी टाइम पर बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको ये टाइटल मिला, मीन्स कि उनको ये ऑनर दिया गया, लोगों ने उनको नेम दिया लोकमान्य. मान्य का मतलब यही होता है कि जिसको लोगों ने मान लिया है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है. लोग तो आप लोग जानते ही हो, पीपल. ओके, एनी बेसेंट रॉट वेरियस आर्टिकल्स इन द वीकली द कॉमनवेल्थ. कॉमनवेल्थ नाम का जो वीकली पब्लिश होता था उसके अंदर एनी बेसेंट ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे. आर्टिकल्स मतलब जो न्यूज़पेपर के अंदर या मैगजीन्स के अंदर जो हम लोग रिपोर्ट लिख कर देते हैं, इट्स नॉट लाइक रिपोर्ट बट जो लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल. इन द कॉमनवेल्थ एंड ऑल्सो इन द डेली न्यू इंडिया. न्यू इंडिया जो डेली पब्लिश होता था उसमें भी, एंड वीकली द कॉमनवेल्थ पब्लिश होता था उसमें, दोनों में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे. एनी बेसेंट अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू शेयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड ग्रांट द होम रूल टू इंडिया एट द अर्लीस्ट. एनी बेसेंट जो थे उन्होंने उनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि इंडियन पीपल जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलने ही चाहिए और जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी इंडिया को होम रूल मिलना चाहिए, मीन्स के सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एंड द मुस्लिम लीग, ये दोनों सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस में मोस्टली हिंदू मुस्लिम सब थे, मुस्लिम लीग के अंदर ओनली मुस्लिम थे, बट दे बोथ सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट.
Annie Besant was kept in house arrest at Uttakamandalam, Ooty by the British government. हाउस अरेस्ट मीन्स उनको घर के अंदर ही बंद कर दिया गया ऊटी में. Demonstrations and protests were launched at various places in India and finally the British government had to set her free. लोगों ने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत अपोज किया, प्रोटेस्ट किया, उनके अगेंस्ट गए, उन्होंने बहुत रैलीज निकाली और वो किया, और उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को फील हुआ कि अब इनकी डिमांड के सामने, मीन्स के इंडियन पीपल की डिमांड के सामने अगर उन्होंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की सो कंडीशन वर्स्ट होगी. एंड दैट्स वाई फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने एनी बेसेंट को फ्री किया. नाउ थिंग्स टू नो, एनी बेसेंट शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई थी, जो सेशन हुआ था इन कोलकाता इन दिसंबर 1917. दिसंबर 1917 में कोलकाता के अंदर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सेशन हुआ था उसमें सबसे पहले फीमेल जो सिलेक्ट हुई वो थी एनी बेसेंट. ओके, नाउ लखनऊ पैक्ट 1916. लखनऊ पैक्ट refers to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow in the year 1916. लखनऊ पैक्ट जो है मतलब अग्रीमेंट जो हुआ, पैक्ट का मतलब दोनों की सहमति से, दोनों जब अग्री थे उसकी वजह से जो अग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों का जॉइंट सेशन मतलब दोनों को साथ में रखकर, दोनों पार्टी को साथ में रखकर, मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन दोनों को साथ में रखकर जॉइंट सेशन हुआ जो लखनऊ के अंदर हुआ था, और इसीलिए उसको नेम दिया है लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था. मोहम्मद अली जिन्ना, then a member of the Congress as well as the League, made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt a more liberal approach toward India and give Indians more authority to run their country. जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, जिससे दोनों पार्टी बनी थी, वो दोनों ही पार्टी के सारे ही मेंबर्स उस एग्रीमेंट पर पहुंचे मतलब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि वो इंडियन पीपल जो है उनके लिए और लिबरल हो, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए, इंडियन पीपल जो है उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको और अथॉरिटीज़ और पावर मिलनी चाहिए कि वो खुद अपनी कंट्री को रन करें. द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द cordial relation between the two prominent groups of the Indian National Congress, the moderates and the extremists. लखनऊ पैक्ट जो है उसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मॉडरेट्स थे एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, दो ग्रुप में हम पढ़ चुके हैं, जो नॉन वायलेंस में बिलीव करने वाले शांत स्वभाव वाले थे वो मॉडरेट्स, एंड जो रिवॉल्यूशन में बिलीव करने वाले थे मूवमेंट में वो एक्सट्रीमिस्ट्स, उनके जो रिलेशन थे वो भी कोऑपरेटिव रिलेशन बने. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज. सुभाष चंद्र बोस, he was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Orissa. His mother's name was Prabhavati and father's name was Janakinath Bose. He was very intelligent since his childhood. सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे. ICS की जो एग्ज़ाम होती है, इंडियन सिविल सर्विस, उसकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें वो 4th नंबर पर आए थे, जो 1920 में हुई थी और लंदन में कंडक्ट की गई थी.
He joined the Indian National Congress after returning to India and participated in the freedom struggle. ICS जैसी एग्ज़ाम पास करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद वो लंदन से इंडिया आए और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट भी किया एंड दैट्स वाई वी आर नोइंग हिम. ही वॉज अरेस्टेड फॉर 11 टाइम्स अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस. पॉलिटिकल ऑफेंस के थ्रू उनको 11 टाइम अरेस्ट किया गया. सोचो, कोई पर्सन 11 टाइम जेल जाकर आया है फॉर अस, तो हमें ये फ्रीडम जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है हमें, लेकिन उसके लिए इन लोगों ने कितना सफ़र किया है. थिंक अबाउट दैट. ही वॉज अरेस्टेड फॉर 11 टाइम, नॉट फॉर 1, 2 और 3, 4 टाइम. 11 टाइम वो जेल गए थे. ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1938 CE. सबसे पहले वो हरिपुरा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें प्रेसिडेंट बने थे. एंड आफ्टर दैट सेकेंड टाइम त्रिपुरा सेशन जो 1939 में हुआ था, पहले 1938 में, देन 1939 त्रिपुरा सेशन जो हुआ उसमें वो प्रेसिडेंट बने थे. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फोर्स्ड हिम रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज उनके और बाकी मेंबर्स की जो आइडियोलॉजी, जो ओपिनियन थे, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे. वो बिलीव करते थे कि डू और डाई, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लड़े बिना फ्रीडम नहीं मिलने वाली. तो वो एक्सट्रीमिस्ट थे. इन May 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक. May 1939 में उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म की जिसका नेम था फॉरवर्ड ब्लॉक. व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, दैट वर्ल्ड वॉर 1 and 2 वी विल स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, बट वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ यूरोप में, उस टाइम पर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है लॉन्च्ड एन एंटी वॉर प्रोपोगेंडा. उस टाइम पर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है उसने एंटी वॉर, मतलब कि वॉर नहीं होना चाहिए या वॉर को कैसे रोकना है, उसका प्रोपोगेंडा, उसका एजेंडा उन्होंने लॉन्च किया. एंड एज ए रिजल्ट सुभाष चंद्र बोस एंड हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड बाय द गवर्नमेंट. उसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस और उनके जो फॉलोवर थे उनको अरेस्ट किया और जेल में बंद किया गया था. वाइल इन जेल सुभाष चंद्र बोस वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक एंड दैट डिटीरियोरेटेड हिज हेल्थ एंड द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू सेट हिम फ्री. जब वो जेल के अंदर थे वो हंगर स्ट्राइक पर के मैं कुछ नहीं खाऊंगा. अब एक दिन ना खाओ, 2 दिन ना खाओ, तीसरे दिन हमारी बॉडी पर उसकी वीकनेस दिखने लगती है. वैसे तो 1 डे में ही दिखने लगती है. हम फास्टिंग करते, पता है ना, मॉर्निंग में फास्ट होता है तो मॉर्निंग का फेस ग्लो करता है, नून होते होते डल होता है, शाम होते होते तो मुरझा जाता है. यहाँ पर वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए कि वो कुछ नहीं खाएंगे और बिकॉज ऑफ दैट उनकी हेल्थ डिटीरियोरेटेड, मीन्स कि उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी, वो बीमार पड़ गए और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको छोड़ना पड़ा. हाउएवर ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट. उनको जेल से तो फ्री कर दिया बट उनको हाउस अरेस्ट करके रखा था. ऑन 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड फ्रॉम द हाउस अरेस्ट. 17 जनवरी 1941 को वो हाउस अरेस्ट में से भी भाग गए. ही डिस्गस्ड हिमसेल्फ एज अ पठान एंड रीच्ड बर्लिन वाया पेशावर, काबुल एंड मॉस्को. उसने सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने अपने आप को डिस्गाइज किया मीन्स कि अपना भेस बदल कर निकलते ना, आइडेंटिटी चेंज करके. सो वो पठान बनकर पहुँचे बर्लिन. पेशावर होकर पठान बने थे तो पेशावर गए और पेशावर से वो बर्लिन, काबुल एंड मॉस्को पहुँचे. He gave a speech on Berlin radio which shocked the Britishers.
फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमात्रा। उन्होंने बर्लिन रेडियो पर स्पीच भी दी, जिसे सुनकर ब्रिटिशर्स शॉक हो गए कि ये तो हाउस अरेस्ट थे, फिर वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। और फिर बर्लिन से वो पहुँचे जापान वाया सुमात्रा। नाउ थिंग्स टू नो, जर्मनी एंड जापान ये दोनों ही इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने इसका एडवांटेज लिया एंड ही स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द जर्मन लीडर। उन्होंने जर्मन लीडर से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना शुरू किया। जर्मन लीडर जो थे हिटलर, अडोल्फ हिटलर, एंड जापान के प्राइम मिनिस्टर तोजो, इन दोनों से उन्होंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। बीइंग एन एशियन कंट्री, जापान वॉज इन अ बेटर पोजिशन टू हेल्प। जापान जो है वो एशियन कंट्री है, जापान एशियन कॉन्टिनेंट में है, जर्मन नहीं है। सो जापान जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है, एशियन कंट्री है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जापान ऐसी पोजीशन में था कि वो हमें हेल्प कर सके, एंड दैट्स वाई सुभाष चंद्र बोस डिसाइडेड टू स्टार्ट द फाइट फॉर फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ जापान। और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने डिसाइड किया कि वो जापान की हेल्प लेकर फ्रीडम मूवमेंट के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। अब इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज जो है दैट वी विल स्टडी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू ऑल, बाय।